Hello students, this is Ajay Kumar Solanki in front of you, and today I am going to explain the story number 5 for you, how the camel got his hump. कैमल के पीठ पे जो कुबड़ है वो किस तरीके से आया. In this story line of this story is there was an animal and that was a camel, and camel did not do the work, and later on how he was punished by a jinn. Earlier actually he did not have any hump on his back, but later on he got it because of his idleness and because of his inactive behavior. So this thing, this story how the camel got his hump, we will come to know about the story of hump on the back of the camel. In the beginning when the world was new, students, जब शुरू में संसार नया था, and animals were just beginning to work for man, and at that very time men used the animals for their own purpose. So at that very time there was a camel. Okay, he lived in the middle of a desert. Desert means रेगिस्तान, और he lived there in the middle of the desert. बीचों बीच रहता था रेगिस्तान में, and the reason to live in the middle of the desert was he did not want to work because he was not interested in doing any work. He had sticks and thorns, और ये दो चीज़ें, sticks and thorns, he used to eat. And when anybody spoke to him, और जब भी कोई उसके पास जाता था तो he said humph. Only this word he used to speak, humph, and no any other words came out of his mouth. Just humph, nothing else. One day a horse came to him and with saddle on his back. एक बार एक घोड़ा आया and he was having a saddle. Saddle एक wooden structure होता है, काठी होती है जो घोड़े की पीठ पे होती है, इस पर बैठ सकते हैं, घुड़सवार बैठ सकता है, राइडर. And wearing the saddle on his back, a horse came to him. Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Rest of us का मतलब बाकी सभी animals, rest of the other animals. Trot means तेज़ी से चलना, move fast. भाई camel come and join us, and as we move fast, similarly like all other animals, you should also run fast. Camel, that was the habit of the camel, only he used to speak the word humph, nothing else. The horse went away and told man, and he informed man about this habit of camel. Then dog came to him, another animal. Dog came to the camel with a stick in his mouth, and with the stick in his mouth he came. Camel, oh camel, come and carry the stick for man like the rest of us. As we are always at the services of man, similarly you should also do the work for man, and that is to carry sticks. तुम भी लाया करो sticks man के लिए. Hump, said the camel. Camel once again said the same word, hump. The dog went away and told man. Dog also did the same as horse had done. उसने भी जाके man को बता दिया कि भाई camel जो है uninterested है, he is not interested at all in doing the work for you. Soon an ox came. उसके बाद एक ox आया students with a yoke on his neck, और साथ में वो एक अपनी गर्दन में उसके क्या था, एक योक था. और योक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? योक इज़ अ वुडन स्ट्रक्चर एंड ऑन एन ऑक्स हैज़ व्हाइल प्लाइंग. जब प्लाइंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो एक वुडन स्ट्रक्चर उसके गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, और एक योक होता है, एक कॉन्ट्राइवर होता है, वो उसके कंधे पे रख दिया जाता है, जिससे कि बैल जो है जोड़ के चलते हैं, आपस में मिल के चलते हैं. दैट इज़ द कॉन्ट्राइवर, दैट इज़ द योक प्लेस्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ऑक्स while plowing the fields. और वो आया, उसने पूछा कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ फॉर मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस. भाई एज वी डू प्लाइंग इन द फील्ड्स, सिमिलरली आप भी खेत को जोतिए, प्लाउ करिए, और हमारे साथ जैसे हम वर्क करते हैं मैन के लिए, एंड जस्ट लाइक दिस यू शुड ऑल्सो डू द सेम. बट द कैमल सेड hump, द सेम वर्ड अगेन. द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन. ऑक्स भी वहाँ से चला गया, एंड ही टोल्ड द मैन अबाउट इट. At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together. All the three animals were called for by the man, and said, और man ने उन तीनों से कहा कि भाई 303, the hump thing in the desert would not work, so I am going to leave him alone. भाई एक्चुअली दिस इज़ the word, जो आप hump जिस तरीके से camel बोलता है,
and this is not good on his part, and he should not speak like this, and so I am not ready to take camel in our group, in our community. तो उसको हम अकेले ही छोड़ देते हैं रेगिस्तान में रहने के लिए. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, एक काम करो, एंड वॉट एवर दी वर्क कैमिल कैन डू यू शुड शेयर दैट वेरी वर्क. डबल टाइम कर लिया करो आप लोग, टू मेक अप फॉर इट, और मेकअप मीन्स टू कंप्लीट, देन दी वर्क विल बी कंप्लीटेड. एंड डबल टाइम सभी लोग वर्क करेंगे तो कैमिल का वर्क भी हम कंप्लीट कर लेंगे. वी नीड नॉट कैमिल एट ऑल. That made the three very angry. Now the three animals were quite dissatisfied, and they wanted that camel also should do his work, and they held a meeting in a corner of the desert. और डेजर्ट के कॉर्नर में उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, एंड दी कैमिल केम, तभी वहाँ पे कैमिल आ गया, एंड चूइंग थॉर्न्स, और वो थॉर्न्स को चबा रहा था, च्यू कर रहा था, एंड ही वॉज लाफिंग ऑल्सो एट दैम. And then he said, Once again he repeated the same word and went away from there. Now the students suddenly rolling in a cloud of dust. तभी एक धूल का जो गुबार था, डस्ट लिए हुए एक जो जिन था, along the जिन वहाँ पे प्रकट हुआ. He appeared before all the three animals. एक धूल के गोले के साथ, and in charge of deserts. और वो जिन जो था वो इंचार्ज था स्टूडेंट्स, डेजर्ट का रखवाला था. एंड जिन्स ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज दे नो मैजिक. और जिन जो है इसी तरीके से धूल के गुबार के साथ आते हैं जाते हैं, क्योंकि वो जादू जानते हैं. इसी तरीके से वो प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, और इसी तरीके से वो गायब हो जाते हैं. जिन ऑफ द डेजर्ट सेड दी हॉर्स. हॉर्स बोला, भाई जिन आप तो जो है डेजर्ट के मालिक हो, इंचार्ज हो, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल. आप ही बताइए कि अगर इस तरीके से आइडल रहेगा, कोई भी एनिमल आलसी रहेगा, लेजी रहेगा, तो इज़ इट गुड ऑन हिज पार्ट? Certainly not, said the Jinn. Jinn said, no, everybody should do the work. Why not he will do the work? Well, said the horse. The horse said, there is a thing in the middle of your howling desert. सर आपका जो डेजर्ट है, जहाँ तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, धूल उठती है, हाउलिंग की आवाज़ करते हुए, इकोइंग की आवाज़ करते हुए, तो वो जो डेजर्ट है उसमें एक लंबी नेक वाला एंड लॉन्ग लेग्स वाला देयर इज एन एनिमल, एंड ही डज नॉट डू वर्क, सो यू शुड टेल हिम टू डू वर्क. नाउ व्यू सेड द जिन विस्लिंग. अब जीव जो था वो जिन जो था वो विसिल करते हुए, सीटी मारते हुए बोला, वाह दैट्स द कैमल. हाँ हाँ बिल्कुल, सरप्राइजिंगली वो तो कैमल है. क्या कहता है वो? व्हाट डज ही से? ही सेज हम्प. सेड द डॉग. डॉग बोला, सर एक्चुअली ओनली वन वर्ड ही स्पीक्स आउट एंड दैट इज हम्प, नथिंग एल्स ही स्पीक्स आउट. डज ही से एनीथिंग एल्स? आस्क्ड द जिन. देन द जिन इज इंक्वायर्ड कि क्या कुछ और भी बोलता है क्या वो? ओनली हम्प इज द वर्ड ऑफ सैड, ही स्पीक्स आउट. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल गिव हिम ए हम्प. चलो ठीक है, मैं उसको हम्प देता हूँ, हम्प ही दूंगा. वेट अ मिनट, थोड़ा इंतज़ार करो. अब उसको जैसे वो बोलता है उसको वही मिलेगा. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन अ डस्ट क्लोक. एक बार फिर से उसने डस्ट के जो क्लोक में, डस्ट का जो आवरण था, धूल का जो आवरण था, उसमें अपने आप को रोल ओवर किया, एकदम से घूम करके वो गायब हो गया. एंड देन ब्लू अक्रॉस द डेजर्ट, और हवा के साथ बहता हुआ, हवा की तरह डेजर्ट को पार करता हुआ बीच डेजर्ट में पहुंच गया. एंड फाउंड द कैमल. कैमल वॉज देयर एंड ही वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. व्हेन जिन रीच्ड देयर एट दैट वेरी टाइम, कैमल क्या कर रहा था? कैमल वॉज लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन. कैमल अपनी परछाई देख रहा था इन दी पूल ऑफ वाटर. एक तालाब था, पूल था, उसमें अपने परछाई को देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन बोला, मेरे दोस्त, what is this I hear of you doing no work? I have heard that you are idle animal and you do not engage yourself in any work. Hump, said the camel. Camel once again, according to his habit, said the same word, hump. The Jinn sat down. Thereafter Jinn sat down with his chin in his hand, और वो अपनी ठोड़ी पकड़ के बैठ गया Jinn, and began to think of a great magic. अब वो सोचने लगा कि क्या जादू करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा से बड़ा जादू. And while the camel looked at his own reflection in the pool of water. While the camel was busy in watching out, in looking out his own reflection, and said hump. और वो hump भी वर्ड बोल रहा था. I should not say that again if I were you. जिन ने उसको एक बार फिर से वार्न किया, फिर से समझाया कि भाई if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बार बार नहीं बोलता. Why should I speak this word again and again? And you say it too often. और आप इसको अक्सर बोलते हो. Many a times you speak it out.
बट द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट द कैमल डिड नॉट फॉलो द जिन, और उसने फिर से सेम वर्ड बोल दिया। नो सूनर हैड ही सेड इट, जैसे उसने वो वर्ड बोला, देन ही सॉ हिज बैक, तभी उसने अपनी बैक को देखा पानी के रिफ्लेक्शन में, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और जिस पे कि उसको बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था अपनी पीठ पे, लेकिन अब उसके ऊपर एक कुबड़ जो है पफ हो रहा था, फूल रहा था, स्वेल हो रहा था, और वो स्वेल होता चला गया, पफ होता चला गया, बड़ा होता चला गया, और एक बड़ा सा उसकी पीठ पे एक कुबड़, एक हम्प बन गया। मांस का एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैशी मांस का जो फूल जाता है, और इस तरीके से वो हम्प जो था उसकी पीठ पे आया। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन बोला कि भाई कैन यू सी दैट वेरी हम्प ऑन योर बैक, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought up upon your very own self by not working, and this is the punishment for you, and this is the idleness, reward of idleness for you, because you are responsible for bringing upon it on your back, and this has been given to you because of your no work. Now you are going to work. अब मुझे लगता है कि शायद आप वर्क करोगे। How can I, said the camel. कैमल बोला सर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, विद द हम्प ऑन माई बैक, भाई मेरे पीठ पे कुबड़ निकल आया है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, दैट्स मेड फॉर ए पर्पस, सेड द जिन। जिन बोला कि दिस हम्प इज़ नॉट विदाउट रीज़न, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, रीज़न है इसका आपकी पीठ पे होने का। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days। अब क्योंकि आप आलसी हैं, यू आर लेजी एनिमल, तो चलो 3 दिन आप वर्क किया करेंगे नाउ, आज से, विदाउट ईटिंग, और खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नो नीड टू ईट फॉर 3 days, बिकॉज यू कैन स्टोर फूड इन योर हम्प, क्योंकि अब आप अपने इस हम्प में फूड स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर फूड फॉर 3 days, एंड डोंट यू एवर से दैट आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। अब ये कभी मत कहना कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए भी किया है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, एंड माई डियर रीडर्स, माई डियर स्टूडेंट्स, उस दिन से अब तक द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, कैमल्स की पीठ पे एक कुबड़ पाया जाता है, वो कुबड़ रखता है अपनी पीठ पे, एंड वी कॉल इट हम्प। और कैमल क्या वर्ड बोलता था स्टूडेंट्स, HUMPH, हम्प, लेकिन उसको हम्प के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ताकि अगर हम हम्प बोलेंगे तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, और ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। सो वेरी इजी स्टोरी फॉर यू। नाउ यू कैन आंसर ऑफ द एक्सरसाइज गिवन एट द बैक। Simple story it is. Are you ready to answer, students? One by one I will speak out the question and you have to answer me. Okay? Open your book and get ready to answer me. Where did the camel live and what was his food? चलिए स्टूडेंट्स ये बताइए कि कैमल जो है कहाँ रहता था और उसका फूड क्या था। जल्दी बताओ स्टोरी में से ढूंढ के, सर्च आउट द आंसर फ्रॉम द स्टोरी। तो कैमल लिव्ड वेयर, in the middle of the desert, and his food was, tell me, search it out, sticks and thorns. कांटे खाता था, स्टिक्स खाता था। Why were the horse, dog, ox angry with him, with the camel? कैमल से क्यों नाराज़ थे ये तीनों एनिमल्स, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, क्यों नाराज़ थे? Tell me, I am giving you pause, I am giving you some time to think about. Okay students, all these 3 animals were angry because they did not want that camel should remain idle. He should also do the work as they used to do. Okay students, now tell me what punishment did the jinn give to the camel? ये बताओ कि जिन ने कैमल को क्या पनिशमेंट दिया, कैसे पनिश किया उसको? Tell me the answer. Punishment everybody knows, and the punishment is he gave him a hump on his back. ओके, वॉज द कैमल गिवन ए फाइनल वार्निंग? क्या कैमल को जो है आखिरी चेतावनी दी गई थी क्या जिन के द्वारा? यस कि नो? ऑब्वियसली यस। एंड व्हाट वाज दैट? अब ये बताओ कि वो फाइनल वार्निंग क्या थी? टेल मी। फाइनल वार्निंग गिवन बाय द जिन टू द कैमल वाज दैट इफ जिन वर देयर इन प्लेस ऑफ कैमल, देन ही वुड नॉट स्पीक द वर्ड हम्प 3 times अगेन एंड अगेन, while the camel in retaliation, in return, always would speak out the word hump, and it was a bad habit. Okay students, now the last question to you. To this day the camel wears a hump. अच्छा, उस दिन से लेके आज तक कैमल की पीठ पे हम्प पाया जाता है, बट वी कॉल इट हम्प, लेकिन हम उसको हम्प कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, बिकॉज
because we do not want that the feelings of camel should be hurt. We do not want that his feelings should be hurt. So that's why this word, in place of this word, we speak the word hump. Okay, students, I do hope this story is quite interesting, quite funny, and you have understood the story very well. Once again, I will be with you with some other video, with some other lesson. Thank you very much. Read the contents again, write its meaning, and try to write the answers in your own language in rough notebook. Okay, students, thank you very much. Have a good day.